Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our next chapter from the book First Flight, chapter 4, and the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. Okay, and this chapter is written by Anne Frank herself. So she is a girl and she wrote a diary, and this chapter that we will read here, this chapter is an extract apart from her diary, that whatever she wrote in that diary that we will read here in this chapter. Okay, so let's start reading with our new chapter. Before you read, so before starting reading the chapter, let's have some idea about the chapter, what this chapter is all about. Anneliese Marie Anne Frank, 12 June 1929 to February or March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Okay, so ये जो राइटर है हमारी, इनका पूरा नाम क्या है? एनालिस मैरी. ओके, और इनको क्या कहते हैं? एन फ्रैंक के नाम से शी इज़ नोन. और इनका बर्थ हुआ था कब? 12 जून 1929 को, एंड शी डाइड इन फरवरी और मार्च 1945. ओके, एंड शी वॉज अ जर्मन बॉर्न. सो इनका बर्थ तो जर्मन में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, एंड शी वॉज जूइश गर्ल. ओके, और इनका जो रिलीजन था दैट वॉज जूइश, एंड शी रोट दिस डायरी वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडम. सो एम्स्टरडम में शी वॉज हाइडिंग with her family and with her 4 friends. Okay, and why was she hiding there? During the German occupation of the Netherlands in World War II. So जब World War II चल रहा था उस समय जर्मन ऑक्यूपेशन हो गया था नीदरलैंड्स पे. देन एट द टाइम शी हैड टू हाइड विथ हर फैमिली इन एम्स्टरडम, और जब ये वहाँ पे छुपी हुई थी दैट टाइम शी रोट दिस डायरी. ओके, after 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. So this group, they were hiding there in Amsterdam, and they were hiding there for 2 long years. Okay, and after 2 years this group was betrayed. Finally people they found out that some people are hiding here, so they were known to everyone, and then they transported to the concentration camp system. Okay, so ये जो कैंप होता है जहाँ पे सभी वॉर प्रिजनर को रखा जाता है, रिफ्यूजीज को रखा जाता है, सो उन्हीं कैंप में इनको ले जाया गया. और वहाँ पे जो एन थी इनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ टाइफस. इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज. सो इस डिजीज से इनकी डेथ हो जाती है इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. और इनकी डेथ से कुछ दिनों पहले ही इनकी जो सिस्टर थी मार्गोट, उनकी भी डेथ हो चुकी थी. तो मार्गोट फ्रैंक की डेथ के कुछ दिनों बाद एन फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है. ओके, her father, Otto, the only survivor of the group, returned to the Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. So वो जो पूरा ग्रुप था, that group that was hiding there in Amsterdam, उस पूरे ग्रुप में जो सर्वाइवर थे वो सिर्फ इनके फादर थे जिनका नाम था ऑटो. और ये जब फाइनली वापस एम्स्टरडम लौट के आ जाते हैं, जब वॉर फाइनली एंड हो जाती है, सो ये इनको क्या पता चलता है कि जो डायरी थी एन की, वो डायरी भी अभी सेफ थी, वो भी अभी इनके पास थी, वो डायरी इनको मिल जाती है. ओके, convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. So जब एन के फादर को डायरी मिलती है, वो उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद वो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस थे कि ये जो डायरी है इट इज़ अ यूनिक रिकॉर्ड. जो भी एन ने उस डायरी में लिखा है दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक. ओके, एंड ही डिसाइडेड दैट दिस शुड बी पब्लिश्ड. सो वो क्या करते हैं, वो एक्शन लेते हैं उसको पब्लिश करवाने में, और वो उसको पब्लिश करवाते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो ओरिजिनली जो डायरी लिखी थी एन ने, वो लिखी थी उन्होंने डच लैंग्वेज में, और जो इनके फादर जब इसको पब्लिश करवाते हैं तो पब्लिश करवाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. और डायरी जब पब्लिश होती है तो किस टाइटल से पब्लिश होती है? द टाइटल ऑफ द डायरी वॉज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ओके, सो इस टाइटल से एन फ्रैंक की जो डायरी थी जो उन्होंने लिखी थी वहाँ पे, वो डायरी पब्लिश हो जाती है. और जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दिस चैप्टर इज ऑल्सो एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस फेमस book, or we can say this famous diary. Okay, written by Anne Frank.
Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. और जो एन फ्रैंक की डायरी जब पब्लिश हुई थी सो वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी, इतने सारे लोगों ने उस डायरी को पढ़ा था कि वो बाद में एन फ्रैंक जो थी वो सबसे ज़्यादा रिनाउंड, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली राइटर बन चुकी थी। और वो बन चुकी थी सबसे ज़्यादा फेमस वन ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। हॉलोकॉस्ट विक्टिम मीन्स जब वॉर होती है, जब इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में जब इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है तो वो जो विक्टिम्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा रिनाउंड जो थी उनमें से एक बन चुकी थी एन फ्रैंक बिकॉज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ हर डायरी। सो उन्होंने जो डायरी लिखी थी अपनी यंग एज में, इतनी कम एज में उन्होंने डायरी लिखी थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो ज़्यादा फेमस हो गई थी कि इसी वजह से एन फ्रैंक आफ्टर हर डेथ इतनी ज़्यादा रिनाउंड हो गई थी, इतनी ज़्यादा वो वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड पर्सनैलिटी वो बन चुकी थी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एन फ्रैंक। उन्होंने वो कौन थी, उन्होंने किस तरह से डायरी को लिखा था और किस तरह से फाइनली हर डायरी वॉज पब्लिश्ड, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद आवर चैप्टर। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. So Anne Frank is writing in her diary and what is she writing? वो क्या लिख रही हैं कि एक डायरी लिखना, तो डायरी लिखना इज़ अ वेरी कॉमन हैबिट, बहुत सारे लोगों में ये हैबिट होती है। कुछ लोग तो जो होते हैं डेली रात को बिफोर गोइंग टू बेड अपने पूरे दिन भर का अकाउंट जो होते हैं डायरी में लिखते हैं, कुछ पीपल वीकली लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं, जैसे सपोज कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो आफ्टर ट्रैवलिंग वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने क्या क्या देखा, व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस, वो सब वो डायरी में लिखते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये हैबिट होती है डायरी लिखने की, इट्स वन ऑफ द हॉबी। सो जो एन थी वो भी डायरी लिख रही थी, उन्होंने कहा कि इस तरह से डायरी को लिखना ये इट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो उन्होंने लिखा कि मुझ जैसी किसी गर्ल के लिए एक डायरी को लिखना इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. And why was a strange experience for her? So वो अपनी बात को आगे एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने क्या लिखा कि this is a strange experience for me, not only because I have never written anything before. So ये इतना स्ट्रेंज इसलिए नहीं है सिर्फ कि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बट इसलिए भी है क्योंकि आई थिंक कि बाद में ये जो डायरी है इस डायरी को कोई भी नहीं पढ़ेगा, मैं जो लिख रही हूँ नो वन विल एवर रीड दिस डायरी, नो वन एवर विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस डायरी। सो उन्होंने लिखा कि ना तो मैं और ना ही एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। तो उस समय उनकी एज क्या थी, शी वॉज जस्ट 13 ईयर्स। ओके, सो यू कैन इमेजिन कि वो 13 ईयर इतनी यंग एज में उन्होंने डायरी लिखी थी, जो कितनी ज़्यादा फेमस हो गई थी, इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर हो चुकी थी। ओके, सो इतनी यंग एज में वो इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी, वो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि उन्होंने डायरी को लिखा था। सो व्हाट इज़ म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स मीन्स थॉट्स। ओके, सो उन्होंने डायरी में लिखा कि मुझे लगता है कि मेरी इस डायरी को कोई भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि एक 13 ईयर स्कूल गर्ल के दिमाग में क्या क्या बातें चलती हैं, उसके क्या क्या ओपिनियंस होती हैं, वो क्या क्या सोचती है, इसको जानने में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मेरी डायरी मुझे नहीं लगता कोई भी कभी पढ़ेगा। ओके, ओह वेल इट डजेंट मैटर। आगे उन्होंने लिखा कि ओके इट डजेंट मैटर कि किसी को इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, कोई मेरी डायरी कभी पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, इट डजेंट मैटर नाउ। आई फील राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। सो नाउ शी इज डिस्क्राइबिंग, शी इज एक्सप्लेनिंग हर सेल्फ दैट वाई इज शी राइटिंग ए डायरी। सो उन्होंने क्या लिखा कि मैं चाहती थी कि मैं डायरी लिखूँ, आई वॉज फीलिंग लाइक कि आई शुड राइट अ डायरी, दैट्स वाई आई एम राइटिंग। और इसके अलावा देयर वॉज वन मोर रीज़न कि वो डायरी क्यों लिख रही थी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अब इस बात का क्या मतलब है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट मतलब वो सारी बातें जो अब तक मेरे मन में दबी हुई हैं, ऑल द थिंग्स दैट आर देयर इन डीप डाउन माई हार्ट, उन सब बातों को जिनको मैं कभी किसी से कह नहीं पाती, कभी किसी से शेयर नहीं कर पाती, तो उन सारी बातों को मैं यहाँ इस डायरी में लिख देना चाहती थी।
दैट वॉज द रीज़न शी स्टार्टेड राइटिंग दैट डायरी. ओके, सो द रीज़न क्यों डायरी उन्होंने लिखनी स्टार्ट क्यों की थी, बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग एनी वन इन हर लाइफ जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके, अपनी सारी बातें वो कह सके. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी सारी जो मन में बातें हैं, वो क्या देखती हैं, क्या फील करती हैं, व्हाट इज शी उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी बातें उस डायरी में वो लिख देना चाहती थी. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. तो इसके बाद उन्होंने एक बहुत फेमस सेइंग यहाँ पे कोट करते हुए लिखा है कि जो पेपर होता है वो पीपल से ज़्यादा उसमें पेशेंस होता है. सो इट इज़ अ वेरी फेमस सेइंग. उस बात का क्या मतलब होता है कि जो पीपल होते हैं उनमें इतना पेशेंस नहीं होता कि वो आपकी बातें बहुत आराम से सुने. ओके, अगर आपको कोई बात किसी को कहनी है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा कि कोई आपके सामने चुपचाप बैठे और आप बोल रहे हो और वो आपकी बातें सुन रहा है पेशेंसली. सो जनरली लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है. बहुत कम लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, जो कि दूसरों की बात बहुत अच्छे से सुनते हैं. लेकिन जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है. तो पेपर में तो हम जो चाहे वो लिख सकते हैं और जितना चाहे हम उतनी चीज़ें पेपर में हम लिख सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी फेमस सेइंग दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. ओके, I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. आगे वो कह रही हैं कि ये जो फेमस saying है, इस saying को मैंने पहले भी सुन तो रखा था, लेकिन इसके बारे में मैंने एक दिन बहुत ज़्यादा सोचा. और वो दिन कैसा था? द डे व्हेन शी वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड. डिप्रेस्ड मीन्स अपसेट. सो शी वॉज अपसेट, शी वॉज सैड बिकॉज ऑफ सम रीज़न एंड शी वॉज सिटिंग एट होम with her chin in her hands. Okay, so she was sitting like that and she was very bored and she was listless. What is listless? Listless means lacking energy or enthusiasm. Okay, so there was no energy, so there was no enthusiasm in her. She was feeling very dull. Okay, wondering whether to stay in and go out, and she was unable to decide that whether she should stay at home or she should go out. Okay, so एक दिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी. she was depressed and उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, एंथुजियाज्म नहीं था. she was feeling very dull और वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या मैं बाहर चली जाऊँ, बाहर जाके मुझे अच्छा लगेगा, या फिर I should stay at home only. Okay, I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. So उस दिन जब भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेस्ड थी, डल फील कर रही थी, so उस दिन फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी, I will stay at home only, I will stay where I was. So she was at home, so उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी, I will stay at home only. And then she was brooding. Brooding means she was engaged in deep thoughts. Okay, so उनके मन में बहुत सारे thoughts आ रहे थे और फिर वो इसी बारे में सोच रही थी. And she was like, yes, paper does have more patience. और फाइनली वो इसी saying को बार बार अपने मन में याद कर रही थी, बार बार इस बारे में सोच रही थी, और फिर वो भी इसी बात से एग्री करती है कि हाँ, ये saying बिल्कुल सच है. सच में जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है रादर देन पीपल. ओके, और फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने कहा कि वैसे भी मैं ये ऐसा तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं डायरी लिखूं और बाद में मैं अपनी डायरी किसी को पढ़ने के लिए दूं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है. और डायरी को उन्होंने क्या कहा है? स्टिफ बैग्ड नोटबुक. सो व्हाट इज स्टिफ बैग्ड नोटबुक? सो जो डायरी होती है वो आप सबने देखी है, उसका जो कवर होता है, फ्रंट कवर और बैक कवर, वो कैसा होता है? डेट इज स्टिफ. स्टिफ मीन्स हार्ड. ओके, सो जो डायरी होती है, हियर इन द पिक्चर यू कैन सी, सो इसका ये जो फ्रंट कवर होता है एंड सिमिलरली जो बैक कवर होता है डायरी का, डेट इज वेरी स्टिफ. ओके, हार्ड बना हुआ होता है. सो इसको वो कह रही है ये जो स्टिफ बैग्ड नोटबुक है, जिसको कि ग्रैंडली मीन्स प्राउडली, और वी कैन से इन अ प्राउड मैनर हम क्या कहते हैं? डायरी कहते हैं. सो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं जो अपनी डायरी में लिखूंगी वो मैं सबको पढ़ाऊंगी. आगे उन्होंने सोचा कि वैसे भी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ
रियल फ्रेंड, सो इनके कोई भी रियल फ्रेंड नहीं थे लाइफ में, सो शी वॉज मिसिंग सम रियल फ्रेंड इन हर लाइफ। सो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाती है जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं, तब तक डायरी ही मेरी फ्रेंड होगी और तब तक मैं डायरी में ही अपनी सारी बातें मैं लिखूंगी। ओके, सो उन्होंने कहा कि इस बात से इट वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब डायरी लिखूंगी क्योंकि आई डोंट हैव एनी रियल फ्रेंड इन माई लाइफ टू शेयर ऑल माई थिंग्स, ऑल माई थॉट्स, सो शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी फाइनली। ओके, now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So now again she is describing the reason, the most important reason that why she decided to write a diary. So वो कह रही हैं कि फाइनली मैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाती हूँ जिसने मुझे इतना ज़्यादा प्रॉम्प्ट किया, मुझे इतना ज़्यादा एनकरेज किया कि आई शुड राइट अ डायरी। और वो रीज़न क्या था? दैट आई डोंट हैव अ फ्रेंड। सो जो फ्रेंड्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ में हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। वी कैन शेयर एनीथिंग, वी कैन शेयर आवर ऑल सीक्रेट्स और आवर ऑल समथिंग दैट इज देयर इन आवर माइंड, आवर थॉट्स, आवर व्यू पॉइंट्स, वी कैन शेयर एवरीथिंग। बट एनी वॉज नॉट हैविंग एनी ट्रू फ्रेंड इन हर लाइफ, दैट वॉज द रीज़न शी नीडेड अ डायरी। उसको इतनी डायरी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी लाइफ में कोई रियल फ्रेंड नहीं थी। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. Again she is explaining herself more. वो कह रही हैं कि मैं इस बात को अब और ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा कि हाउ a 13-year-old girl can be alone, all alone in this entire world. So जब वो कह रही हैं कि मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, so वो कह रही हैं कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस बात को और भी क्लियरली, बिकॉज आई थिंक दैट पीपल वोंट बिलीव दैट हाउ अ 13-year-old girl कैन बी कम्प्लीटली अलोन इन दिस एंटायर वर्ल्ड एंड आई एम नॉट। और वो कह रही है कि और वैसे भी ऐसा नहीं है कि आई एम कम्प्लीटली अलोन इन दिस एंटायर वर्ल्ड, आई वॉज नॉट अलोन। I have loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends. वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि I am completely alone, I live by myself, I live all alone in my house. It's not like that. वो कह रही हैं कि मेरे पेरेंट्स भी हैं और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लविंग हैं and I have a sister and she is 16-year-old. So बहुत ही क्लियरली अब हम कह सकते हैं कि जो इनकी सिस्टर थी मार्गोट वो इनसे एल्डर थी because Anne is 13-year-old and her sister Margot is 16-year-old. Okay, and there are about 30 people I can call friends. So parents के अलावा और अपनी elder sister के अलावा she was having almost 30 more people जिनको वो अपना friends कह सकती थी। I have a family, loving aunts and a good home. So she is saying that मेरे पास एक अच्छी family है, parents हैं, sister है और I have some loving aunts in my family and I was having a very good home. No, on the surface I seem to have everything एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो कह रही हैं कि कोई भी अगर सरफेस से देखे, मतलब कोई अगर डीपली ना जाए, कोई अगर बहुत ज़्यादा बारीकी से ना देखे, सिर्फ सरफेस से किसी को देखना हो तो वो यही पाएगा कि डेट आई एम हैविंग अ वेरी गुड फैमिली, वेरी गुड पेरेंट्स, आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स इन माई लाइफ। बट जो रियलिटी है डीप डाउन में, वो रियलिटी क्या है? डेट शी वॉज नॉट हैविंग वन ट्रू फ्रेंड्स। ओके, सो कहने के लिए फ्रेंड्स तो बहुत सारे थे, शी वॉज हैविंग ऑलमोस्ट 30 पीपल जिनको फ्रेंड्स कह सकती थी, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना ट्रू फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस, वो एक ट्रू फ्रेंड जो था वो इनकी लाइफ में नहीं था। शी वॉज मिसिंग दैट वन ट्रू फ्रेंड, राइट? All I think about when I am with friends is having a good टाइम। अब वो कह रही हैं कि फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? सो शी इज सेइंग कि मुझे लगता था कि जब भी मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ तो उसका मतलब ये है कि डेट आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई एम इंजॉइंग अ लॉट, आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद देम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। अब वो कह रही हैं कि लेकिन जब भी मैं अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं जो किस तरह की
बातें करती हूँ जो एक ऑर्डिनरी डे टू डे की बातें होती हैं, एवरीडे की जो नॉर्मल बातें होती हैं, आई कैन टॉक ओनली दैट मच। लेकिन जो एक ऐसी बातें होती है ना कि हम अपने मन की बात कह सकते हैं, व्हाट इज़ देयर इन डीप डाउन इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड, वो जो हम बातें कह सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो शी वॉज नॉट एबल टू टॉक लाइक दैट, ओके। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो कह रही हैं कि प्रॉब्लम यही थी कि मेरे पास बहुत सारे पीपल थे जिनको मैं फ्रेंड्स कह तो सकती थी, लेकिन हम सब अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और बिल्कुल जनरल एवरीडे की बातें करते थे। हम कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते थे जो आप सिर्फ अपने किसी क्लोज वन से करते हो, दैट इज समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। आप उसके साथ जितने ओपन अप हो पाते हो, उसके साथ आप जितनी फ्रेंकली ओपनली अपनी बातें कर पाते हो, ये बातें ये नहीं कर पाती थी। दैट वाज द प्रॉब्लम। सो ये कह रही है कि प्रॉब्लम यही थी कि हम आपस में उतने क्लोज नहीं आ पाते थे। वो क्लोजनेस जो थी, दैट क्लोजनेस शी वॉज मिसिंग, ओके। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइन इन ईच अदर। आगे वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि गलती उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स की है कि वो कंफर्ट नहीं देते कि अपनी बातें शेयर करें। सो वो कह रही हैं कि मे बी इट्स माई ऑन फॉल्ट कि मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती कि हम आपस में चीज़ें शेयर कर सकें। वॉट इज़ कन्फाइड? कन्फाइड मीन्स टू शेयर द सीक्रेट्स और टू शेयर योर प्राइवेट मैटर्स, और वी कैन से टू शेयर योर प्राइवेट थॉट्स, ओके। सो वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ उनकी है, मे बी इट्स माई फॉल्ट only कि I am not sharing my things with them, okay. In any case, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change। आगे वो कह रही है कि whatever is the reason, चाहे गलती किसी भी की भी हो, चाहे मैटर कुछ भी हो, but that doesn't matter actually, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि चीज़ें एक्चुअल में ऐसी ही हैं। I am not having any true friend in my life, okay। सो वो कह रही हैं कि चाहे रीज़न कुछ भी हो, चाहे गलती किसी की भी हो, बट हाँ, the truth is that I am not having any true friend and unfortunately जो चीज़ें हैं डेट विल नॉट चेंज इट, वो ऐसा लग नहीं रहा है दैट थिंग्स विल चेंज समडे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। व्हाट इज़ लाइबल? लाइबल मीन्स आंसरेबल। सो वो कह रही है कि जो रियलिटी है वो यही है और मुझे नहीं लगता, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें चेंज होने वाली हैं, ये रियलिटी कभी चेंज होगी, कभी मुझे एक ट्रू फ्रेंड मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। This is why I have started the diary, and this was the biggest reason, this was the most important reason that she started finally writing a diary. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination. So वो डायरी उनके लिए क्या थी? It was like a long awaited friend for her, okay। And what is enhance? Enhance means to increase or to intensify। So कह रही हैं कि I was, उनके मन में इतनी ज़्यादा deep desire थी, she was craving for a real friend, she was craving for a true friend, and because of that it was like a long awaited friend for her, okay। So वो इस इमेज को और ज़्यादा इंक्रीज करते हुए कहना चाहती हैं कि इट वॉज लाइक अ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड फॉर मी, ओके। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। आगे उन्होंने कहा, अपनी डायरी में लिखा उन्होंने कि जैसे जनरली बाकी सब लोग करते हैं, ओके, सो मोस्टली पीपल जैसा करते हैं वैसा मैं नहीं करना चाहती, और वो क्या चीज़ है जो कि जनरली सब करते हैं, एंड एन वॉज नॉट वॉन्टिंग टू डू दैट इज जॉट डाउन द फैक्ट्स। वॉट इज जॉट डाउन? जॉट डाउन मीन्स टू राइट ब्रीफली, और वी कैन से टू राइट हरिडली, ओके, और वी कैन से टू जंप, किसी भी चीज़ पे तुरंत आ जाना। सो वो कह रही है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने डायरी लिखनी स्टार्ट की तो फर्स्ट पेज से ही मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगी अपनी डायरी। सो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि पहले मैं क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि डायरी को मैं अपना फ्रेंड बना लूँ, ओके। और जो डायरी है वो इसीलिए उन्होंने लिखनी स्टार्ट की थी बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग एनी ट्रू फ्रेंड इन हर लाइफ। इसीलिए उन्होंने चाहता है कि मैं डायरी लिखूंगी, डायरी में मैं अपने सारी फीलिंग्स, अपने सारे सीक्रेट्स, अपने सारे थॉट्स आई कैन शेयर विद द डायरी। इसलिए डायरी वॉज हर फ्रेंड, और उन्होंने अपनी डायरी का एक नाम भी रखा था। शी गेव वन नेम टू हर डायरी, हर फ्रेंड, एंड दैट नेम वॉज किटी, ओके। सो किटी जो थी वो उनकी डायरी का नाम था, एंड इट वॉज लाइक अ ट्रू फ्रेंड फॉर हर, अ फ्रेंड विथ हुम शी कैन शेयर हर थॉट्स, हर सीक्रेट्स, और वी कैन से हर प्राइवेट मैटर्स, ओके। सो एक ट्रू फ्रेंड की उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी थी। दैट वॉज द बिगेस्ट रीजन शी फाइनली स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, ओके। सो आगे डायरी में उन्होंने क्या लिखा है वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।